Hello everyone, my name is Nimesh Pitale. I am the technical head scout for India Khelo Football. I'm a proud core team member of India Khelo Football since last 3 seasons. I have been associated with them since 2022. Previously, I worked for Punjab FC, the present ISL team, as a talent scout and also an operations associate. Before that, I worked for an European sports agency as a video scout. I am also the first scout to get certified from Europe, where when scouting was not into an exposure, I started scouting since 2017-18. I did my scouting certification from Prague, Czech Republic, and I was also one of the elite members to scout the CE Cup, which happens every year in Prague for under 19 European teams. And this is how I came into scouting. I also happen to be an engineer. So India Khelo Football is basically a non-profit organization which we are acting as a platform for the players who need to be assessed, जो potential players है जिनको they need to be assessed, they need to be identified. तो हम लोग एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं लाइक फ्रॉम ग्रास रूट टू देयर प्रोफेशनल लेवल. सो दिस इज़ हाउ वी एक्ट. तो हम लोग का बेसिक आइडिया इज़ टू प्लेयर्स को एक जगह पे आने ना पड़े. सो वी हैव और स्किल्ड स्काउट्स, वेल ट्रेन्ड सर्टिफाइड स्काउट्स जो अलग अलग सिटीज़ में, विलेजेस में ऑलरेडी है अक्रॉस इंडिया. So they go there, we conduct trials across all over India. So they go there, they identify the potential talent, उनको select करते हैं. Then they come to the zonal finals, they get selected zonal finals. If they play well over there, they perform well, वो आगे जाके हमारे IK finals में आते हैं और वहाँ पे हम लोग सारे ISL I League clubs को we invite them and वहाँ पे हमारा काम ख़त्म होता है as a scouting. Then we allow these players to showcase their talent in front of the ISL I League clubs and then it is up to the clubs कौन से player को उनको select करने नहीं करना. So before we start with level 2, I would like to tell that we first started with level 1, which was first started in 2024 July. So our main idea was to we have a lot of talent across India, but we don't have a proper professionals to scout the talent. So talent scout करने के लिए we require a very good professionals who have that good detail eye for it. वो लोग अच्छी तरह से उसको you can say they can analyze the players. So there was need for more scouts. तो वहाँ पे हम लोग ने level 1 start किया so that the players can be identified properly in a very detailed manner. तो level 1 हम लोग ने start किया जब 2024 में. It was like an you can say trial and error method था, but when we did it तो हम लोग के पास अभी almost we have 90 to 95 active scouts. We have certified more than 100 scouts. तो उसके बाद जैसे जैसे हम लोग आगे we got more professionals, more skilled scouts जैसे आने लगे. After that we had a very brainstorming session between our core team members. बाद में हमारे scout से भी questions आने लगे थे कि once we have identified a talent उसके बाद उसको हम लोग कैसे analyze करें, क्या करें. Then we came up with an idea कि yes, now we require something you can say next step कि हम लोग कह सकते हैं कि now if we have identified a player who has got a potential, तो उसको एक पोजीशन में हम लोग कैसे उसको ऑब्जर्व करें, उसको कैसे हम लोग स्काउट करें, कैसे एनालाइज करें. दिस इज़ हाउ वी केम अप विद एन आइडिया. सो इट वाज अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग. देयर वाज एन आउटसाइड डिमांड फ्रॉम आवर एग्जिस्टिंग स्काउट्स एंड ऑल्सो अ नीड विच इज़ रिक्वायर्ड. लाइक हर एक एज कैटेगरी में कैसे कैसे प्लेयर को आइडेंटिफाई किया जाता है. सो दिस इज़ हाउ वी केम अप विद दैट. Main thing is that IKF CFA says India Khelo Football Certified Football Scouting Accreditation. This is what we call it. Level 1 is just a basic talent identification. Level 2 is more detailed. It is more position specific. So as I said before कि once you identify a talent, आप अगर एक talent को identify करते हो
and you know that he is ticking all the boxes in that specific attributes. हर एक, for example आप एक अटैकर को ले लो कि उसने हर एक बॉक्सेस टिक किया and he turns out to be an exceptional player, but it is very much necessary in which position he fits in. So for example वो विंगर है तो विंगर के लिए भी वी ब्रेक डाउन देम इनटू डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स. सो वी नीड टू नो कि उसको एसेस करने के लिए क्या चाहिए. एंड व्हेन वी एसेस एंड व्हेन वी कम टू नो कि ये स्पेसिफिक प्लेयर विंग के पोजीशन में अच्छा खेलता है तो कैसे खेलता है, क्यों खेलता है, व्हाट आर द नेसेसरी एट्रीब्यूट्स रिक्वायर्ड, वैसे करके हम लोग ने लेवल 2 का ये स्टार्ट किया प्रोसेस. सो दिस इज़ व्हाट द रोल स्काउटिंग या फिर पोजिशनल इंटेलिजेंस हम लोग इसको कहते हैं. एंड इट ऑल्सो टू जस्ट ऐड विद इट, it is also about what the player does without the ball. It is not just with the ball. So this is how the overall the level 2 is all about. कि right from the goalkeeper से लेके striker के position तक if there are different positions and how to analyze them. So again basically the level 1, if you say level 1 is a skill foundation course. सो फॉर एग्जाम्पल आप अगर कंस्ट्रक्शन करने जाओगे, यू कैन नॉट डू इट ऑन ए फ्लैट स्ट्रक्चर, यू नीड ए सॉलिड फाउंडेशन वो स्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए. सो दैट्स व्हाट इट इज़, दैट्स व्हाट द लेवल 1 इज़. तो लेवल 1 में जो स्काउट्स सीखते हैं, व्हाट दे लर्न इज़ बेसिकली अबाउट ऑल द एट्रीब्यूट्स. देयर आर ऑलमोस्ट 38 to 40 एट्रीब्यूट्स अक्रॉस 4 वर्टिकल्स ऑफ द गेम. वो उनको हम लोग सिखाते हैं, दे नो इट. वो अगर वो मास्टर करते हैं ना, देन दे आर एक्चुअली एलिजिबल टू द लेवल 2, knowing that yes, I have identified an attacker and midfielder and defender. Even in the goalkeepers there are 2-3 types of goalkeepers. एक ही टाइप का गोलकीपर नहीं रहता. For example you have Onana, you have Alisson. One is very much position specific, he holds his position, and Onana is a ball playing goalkeeper. वैसे ही उनको आगे जाके जब भी एक प्लेयर आइडेंटिफाई करते हैं कि येस ही इज़ ए राइट फिट ना, कि एक आगे सिलेक्ट हो सकता है, देन उसको हम लोग जब भी क्लब्स के लिए रिकमेंड करते हैं या फिर वी पुश देम टू द हायर रैंक्स, वी नीड टू नो कि एग्जैक्टली वो प्लेयर कौन से स्ट्रक्चर में, कौन से क्लब सिस्टम में फिट हो सकता है. सो फॉर एग्जाम्पल वी ऑलवेज टॉक अबाउट स्पेसिफिक फॉर्मेशंस कि ये 3-5-2 है या फिर 4-3-3 है, लेकिन वहाँ पे आगे जाके ये आइडेंटिफाइड प्लेयर अगर राइट पोजीशन पे नहीं खेलेगा देन ही गेट्स अंडर यूटिलाइज्ड. सो दिस इज़ द मेन आइडिया जो लेवल 2 में हम लोग को स्काउट्स को सिखाना पड़ता है. बट फॉर दैट देयर फाउंडेशन ऑफ द लेवल 1 इज़ वेरी मच नेसेसरी. सो दिस इज़ हाउ दे गो फ्रॉम द लेवल 1 to level 2. Okay, so positional intelligence, one thing is the scouts need to be very sure कि positional intelligence is not just with the ball, it is also without the ball. Then along with that, it's where they are positioned, वो position पे वो क्या करते हैं, that is very important. बॉल के साथ, बॉल के बिना, बाद में it is not just about running around, it is how you make spaces, आप कैसे movements करते हो, राइट, वो हम लोग सिखाते हैं. एंड एट द सेम टाइम इट इज़ ऑल अबाउट हाउ द प्लेयर थिंक्स कि बॉल रिसीव करने के पहले क्या पोजीशन लेना है, बॉल पास करने के बाद हाउ यू मेक द मूवमेंट्स, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. सो पोजिशन इंटेलिजेंस इज ऑल अबाउट यू बीइंग विद द बॉल, विदाउट द बॉल, एंड आफ्टर दैट व्हाट यू डू. फॉर एग्जाम्पल आप अगर बॉल पास करते हो, सो यू कैनॉट बी स्टैटिक एट वन पॉइंट. You should be making spaces. At the same time, you should be communicating with your fellow teammates to make or adjust that space which you have, created over there. So this is all about the positional intelligence. Yeah. So the point is, see, I will repeat again कि for example एक player हम लोग ने shortlist किया है, we have selected that player. एंड ही टर्न्स आउट टू बी ए वेरी गुड प्लेयर. तो हम लोग को पता है कि ये खेल सकता है, कि हिज टच इज़ गुड, हिज कंट्रोल इज़ गुड, हिज बैलेंस इज़ गुड, हिज मूवमेंट इज़ गुड. बट हर एक प्लेयर का मूवमेंट स्पीड इट नीड्स टू बी गेज कि ये कौन से एग्जैक्टली पोजिशन पे होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल इफ़ ए मिडफील्डर इज़ देयर,
तो मिडफील्डर के मूवमेंट्स आर इन ए स्पेसिफिक जोन्स, they don't have to make lot of runs, but at the same time if there is a winger or if there is a modern day fullback, he has to make lot of runs on the flanks. ठीक है, तो इस केस में क्या आता है कि दो अच्छे प्लेयर में वी हैव टू चेक कि किसका स्पीड ज़्यादा अच्छा है, किसका यू कैन से कि कौन ज़्यादा स्पेस बना सकता है. सो देर आर टू डिफरेंट प्लेयर्स बट वी हैव टू चेक कि किसका स्टेमिना अच्छा है, किसका स्पेस मेकिंग ज़्यादा अच्छा है और किसका स्पीड अच्छा है. सो दैट्स हाउ वी डिफरेंशिएट एंड वी कैन टेल दैट दिस स्पेसिफिक प्लेयर फिट्स इन द विंगर्स पोजिशन, दिस स्पेसिफिक प्लेयर फिट्स इन द विंग बैक्स पोजिशन और लेफ्ट बैक पोजिशन, एंड एट द सेम टाइम which player can play in specific congested zones but they can pass the ball around. So this is how. Yeah, see, as I said before also, there are different positions, उसमें भी और ज़्यादा पोजिशन है. फॉर एग्जाम्पल जब भी हम लोग ने लेवल 1 सिखाया था ना, लेवल 1 वॉज अबाउट गोल कीपर्स, डिफेंडर्स, मिडफील्डर्स, अटैकर्स. फिर गोलकीपर्स में भी देर आर 2-3 टाइप ऑफ गोलकीपर्स. उसमें अभी डिफेंडर्स में आप अगर जाओगे देर आर लाइक सेंटर बैक्स, देर आर फुल बैक्स, देर आर मॉडर्न डे फुल बैक्स, देर आर विंग बैक्स. ठीक है, देन कम्स द मिडफील्डर्स. इवन इन मिडफील्डर्स वी हैव लाइक सेंटर मिड्स, अटैकिंग मिड्स, डिफेंसिव मिडफील्डर्स. देन व्हेन यू गो एज एन अटैकर्स, गो फॉर द अटैकर्स, आपके पास फॉरवर्ड्स होते हैं दो, एक टारगेट मैन रहता है, स्ट्राइकर रहता है, विंग्स रहते हैं. तो जैसे जैसे फुटबॉल इवॉल्व होते गया ना, वैसे हम लोग को प्लेयर का एनालिसिस भी यू नीड टू यू हैव टू वेरी योर एनालिसिस. सो इस तरीके से उनको हर एक चीज़ प्रॉपरली एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है. सो दैट इज़ व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो एक्चुअली टू स्टार्ट विथ, इन मॉडर्न डे फुटबॉल सारे के सारे रोल्स हैव बीन इवॉल्व्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, फ्रॉम गोलकीपर से लेके स्ट्राइकर तक जाओ. बट इफ़ यू वांट मी टू हाईलाइट अ फ्यू, देन इट विल बी लाइक द मॉडर्न डे फुल बैक्स, देन इन्वर्टेड विंगर्स एंड ऑल्सो ए डीप प्लेइंग प्ले मेकर. दीज आर द 3 पोजिशंस दैट आर, सी एवरी पोजिशन इम्पोर्टेंट, लेकिन ये स्पेसिफिक पोजीशंस ऐसे है कि दे कैन डिसीव द ओपोनेंट्स वेरी वेल. तो ये 3 पोजीशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच नीड्स टू बी डिकोडेड बाय द स्काउट्स एट ए डिफरेंट लेवल. ऐसा नहीं है कि ओनली द प्रोफेशनल लेवल पे आजकल ऐसा होता है. इफ़ यू वॉच और AIFF यूथ लीग्स का फाइनल गेम अंडर 15 का, अंडर 17, इट डज हैपन वेर यू सी द इन्वर्टेड विंगर्स प्लेइंग. यू कैन ऑल्सो सी ए डीप प्लेइंग प्ले मेकर एंड ऑल्सो ए मॉडर्न डे फुल बैक्स. So these are the 3. So I'll start with the fullbacks first. See, if you go back in 1970s time से लेके जब भी रिनस मिकल्स करके कोच था आयैक्स का, he started a total football system जहाँ पे ऑल द आउटफील्ड प्लेयर शुड बी एबल टू प्ले इन डिफरेंट पोजिशंस. सो एक्चुअली वहाँ से ही इवोल्यूशन हुआ था कि यू एक्चुअली कैन डिसीव द अपोनेंट सेइंग कि वी आर दिस स्टार्टिंग 11, बट एट द सेम टाइम ए राइट बैक कुड ईजिली मूव इन टू एन मिडल स्पेस, सेंट्रल स्पेस एंड क्रिएट चांसेस जो अपोनेंट्स को समझ में नहीं आता था. एंड नाउ ऑलमोस्ट ऑल द कोचेस, द मॉडर्न डे कोचेस आर ऑल्सो यूजिंग इट. पीपल आर नॉट अवेयर कि रिनस मिकल्सन तभी क्या किया था. सो द एग्जाम्पल इज कि ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड का आप अगर देखते हो, दे प्लेड इन द सेम वे. सो दिस इज हाउ इट हैज इवॉल्व्ड. ही कैन ऑल्सो मूव इन द सेंट्रल एरियाज एंड ही कैन प्रोवाइड provide the services to the attackers, to the wingers. So nowadays the fullbacks have evolved in that way. Even if you go and check with the Robertson, Andy Robertson in his prime, अभी तो नहीं बोल सकते, even he as a left back he can get inside the box within no time. So this is the evolution you can say of the fullbacks, modern day fullbacks. At the same time, if you ask me about the wingers, inverted wingers, you have a very good example of Mohamed Salah. He is an inverted winger. Now पहले रहता था कि wingers are like they will
make the runs up, और वो लोग they will put in the crosses and the rest of the work will be done by the strikers or you can say the forwards. But now at the same time he cuts inside, वो खुद चांस भी क्रिएट कर सकता है, he can even score goals, he can act as an second forward या फिर second attacker. And at the same time if you can check in our Indian football, चांगते भी सेम ही खेलता है. He doesn't wait for someone to reach at the right place at the right time. He can easily use his skills, he can cut inside and score goals. So वो एक है. And also I would like to add a deep playing playmaker. जैसे अभी evolution हुआ है, if you can see Busquets का आप example देते हो, he is actually a proper defensive midfielder. लेकिन at the same time if you see the system and when they have got a very solid backline, he moves upward and he provides the services as if he is an attacking midfielder as well, right? Or you can say box to box midfielder. Similarly हम लोग के Indian इसमें you have a Jackson Singh करके player है. He is a very good player. I guess now he is playing in East Bengal. He is a perfect example of how a deep lying playmaker plays. वो defensive mid ही है, but when the team is in an attacking mode and when he is confident that my backline can take care of themselves, he can move forward and score goals, या फिर he can even create chances. So this is how these roles have evolved. See, the point is that कि अभी आप एग्जाम्पल ले लोगे तो फिर जैक्सन सिंह का भी मैंने दिया या फिर चांगते का भी मैंने बात किया. So these positions are very important because they helps the coaches. We call them as the coaches players. So in this case I would like to say that when you identify a player और एक player को अगर हम लोग एक पोजीशन में सेट करते हैं, सो इट इज़ वेरी नेसेसरी कंसिडरिंग द इंडियन फुटबॉल सिस्टम. अभी एक पोजीशन में एक कोच के पास ही शुड एटलीस्ट हैव 3 to 4 प्रोफाइल्स ऑफ ए सिमिलर टाइप. इसके लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है. फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई हैव शॉर्ट लिस्टेड जैक्सन सिंह का अगर मैंने नाम लिया है तो उसके जैसे और 2-3 प्लेयर रहेंगे ना, इट हेल्प्स द कोच, it helps the club, it helps the system overall, and you can have a very strong lineup. और आपका जो बेंच पे रहता है वो भी you can help with the substitutes as well. So हर एक पोजीशन पे having a right profile is very important. See, आपको टैलेंट अच्छा मिलेगा, you will get a very exceptional player across all the attributes of the game, across all the verticals of the game. उसके पास फिजिकल स्ट्रेंथ रहेगा, उसके पास टेक्निकल स्किल्स रहेंगे, इवन ही विल बी एन इंटेलिजेंट प्लेयर ऑन फील्ड. ठीक है, कम्युनिकेट अच्छा करता है, सब कुछ करता रहेगा. बट इफ़ यू डोंट आइडेंटिफाई हिज राइट पोजीशन देन वो वापस अंडर यूटिलाइज होता है या फिर उसको सही जगह मिलती नहीं. इवन उसको भी कभी कभी उसके कंफर्ट जोन के बाहर खिलाना बहुत नेसेसरी है, सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई कि वो कहाँ पे है करके. सो वी कैन गिव एन एग्जाम्पल. देर आर मैनी सेंटर बैक्स जो हम लोग के यूथ सिस्टम में भी है, बट we can make them play as a defensive mids. हम लोग के भी ट्रायल्स में काफ़ी आते हैं प्लेयर्स जो अंडर 17 अंडर 18 के रहते हैं. उनके माइंड में क्लियर रहता है कि मैं सेंटर बैक हूँ, राइट, मैं बॉल डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, आई विल शील्ड माई गोलकीपर, एवरीथिंग उसको पता है. बट एट द सेम टाइम इफ़ ही जस्ट मूव्स फॉरवर्ड और वो कैसे बॉल डिस्ट्रीब्यूट करता है, हाउ ही प्रोवाइड्स द सर्विस, उसको खुद को नहीं पता रहता. सो इट इज़ अ स्काउट्स ड्यूटी टू हाउ टू मेक हिज प्रोफाइल इवन स्ट्रॉन्गर. तो उसका फर्स्ट पोजीशन सेंटर बैक हो सकता है, बट हिज सेकेंडरी पोजीशन कैन बी डिफेंसिव मिड, विच दे कैन यूज इट एज ए पार्ट ऑफ देयर डोसियर्स. वो लोग दे सकते हैं कोचेस को, क्लब्स को. सो दिस इज हाउ दे हैव टू वर्क ऑन इट. ओके, सो एज आई मेंशन्ड हम लोग के पास ऑलरेडी 100+ स्काउट, एज आई मेंशन्ड हम लोग के पास ऑलरेडी 100+ स्काउट्स है, लेवल 1 स्काउट्स. उसमें वी हैव ए बंच ऑफ वेरी यंग स्काउट्स राइट फ्रॉम द एज ऑफ 21 से लेके अभी 25 के. इसमें वी हैव ऑलमोस्ट 10 to 12 स्काउट्स who have got a very scouting eye. They are very good at it. But the thing is that once they have mastered that, you can say कि एक player identify कर चुके हैं, but they should be able to know कि मैंने जो scout किया हुआ player है, now if he is 15,
सो जैसे वो 18 जाएगा 18 बनेगा और फिर अगर हम लोग उसको क्लब्स को रिकमेंड करते हैं, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस यंग स्काउट्स टू अंडरस्टैंड कि ये प्लेयर कौन से पोजीशन पे आगे खेल सकता है. एट द सेम टाइम नाउ द स्काउटिंग सिस्टम, द स्काउटिंग इज गेटिंग एन एक्सपोजर. ठीक है, जैसे एक्सपोज हो रहा है वैसे चांसेस उनके टू वर्क फॉर द क्लब्स हैज इंक्रीज. तो उनको हर बार विद दिस लेवल 1 लेवल 2 जैसे जैसे ये लोग करते जाते हैं, दे हैव टू अडेप्ट, दे हैव टू अपग्रेड देमसेल्व्स. तो उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है. आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द यंग स्काउट्स. तो टू स्टार्ट विथ, जैसे लेवल 1 में हम लोग ने स्टार्ट किया था, इट वॉज फॉर ओन कंजम्पशन. क्योंकि हम लोग जब भी स्काउटिंग का थॉट स्टार्ट किया था प्रोसेस की प्लेयर को आइडेंटिफाई करना चाहिए प्लेयर्स में, उसके लिए हम लोग को स्काउट्स की ज़रूरत थी ऑल ओवर इंडिया. सो टू गेट स्काउट्स ऑल ओवर इंडिया वॉज और रिक्वायरमेंट दैट टाइम. उसके बाद वो डिमांड आते गया, द स्काउट्स वेर इंटरेस्टेड, वैसे वैसे स्काउट्स बढ़ते गए. देन केम द क्वेश्चन कि ये स्काउट्स को फुल टाइम रिक्रूटमेंट या फिर जॉब्स मिलेंगे. बिकॉज स्काउटिंग वॉज नॉट इतना एक्सेप्टेड से ज़्यादा कि इतना एक्सपोजर नहीं था उसको. दे वर नॉट एक्सपोज. कोचेस को या ट्रेनर्स ही सब कुछ करते ही पता था. बट अभी जैसे स्काउटिंग सिस्टम बढ़ रहा है, पीपल आर वेल अवेयर कि स्काउटिंग क्यों ज़रूरी है, किस लिए ज़रूरी है. सो नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज आफ्टर दिस लेवल 2, just to answer your question, we have started the you can say cohort education system start किया है कि इनके पास level 1 का एक certification रहेगा. they will have a level 2 certification. so after these 2 credentials we can confirm and say कि these scouts are well equipped with the skills, with the education कि वो एक club के लिए काम कर सकते हैं. we can recommend them. So what we are going to do is that after they complete the level 2 certification, so where they are very much skilled, we are going to prepare their profiles and we are going to send it to different clubs starting with our partner clubs. तो हम लोग उनको सेंड करें. उनके पास अगर वैकेंसी रहेगा, इफ देयर इज अ रिक्रूटमेंट अपॉर्चुनिटी, नाउ देयर आर फ्यू क्लब्स हु आर हायरिंग स्काउट्स एंड एनालिस्ट. अभी जब भी मैंने स्काउटिंग स्टार्ट किया था, व्हेन आई केम बैक फ्रॉम यूरोप, तभी 1-2 ही क्लब थे जो स्काउटिंग सिस्टम को एक्सेप्ट करे. दैट वाज पंजाब FC दैट टाइम. सो नाउ देयर आर मोर क्लब्स विच आर वेरी मच अवेयर ऑफ स्काउटिंग, द नीड फॉर स्काउटिंग. तो हम लोग का भी ऐसे आइडिया है, वी हैव ए प्लान कि ये लेवल 1 लेवल 2 जो स्काउट करता है, विल क्रिएट द प्रोफाइल्स and we'll start sharing with the different clubs. So the advice would be like, first is कि you should always have your basic strong. जैसे कि हम लोग प्लेयर्स को भी बोलते हैं, the same way we expect from the scouts as well. You cannot take this job very lightly, because first advice will be कि every trial when you go for scouting, you should consider it as your first scouting trial. Never get overconfident कि मैंने बहुत सारे ऐसे players देखे हैं तो मैं आज भी ऐसे कर लूँगा. Every day, every trial we get to see different types of players. Some do, I'll just say कि scouting is not about rejection and selection. It is also about monitoring few players. There are few players who are not ready as of now. They are raw talent. They have potential after 2 years. So वो भी उनको जानना ज़रूरी है कि you have to diligently work on it. हर एक प्लेयर को ठीक से देखो, किसको आप रिजेक्ट करोगे, किसको आप होल्ड पे रख सकते हो. You have to monitor few players. उसके बाद सिलेक्शन क्राइटेरिया आता है. So they have to take it very seriously. सेकेंड थिंग, वर्किंग ऑन योर बेसिक स्किल्स. जो आपने अभी लेवल 1 में सीखा है उसको बार बार थरोली यू हैव टू कीप ऑन चेकिंग इट. ऐसा नहीं कि मेरा लेवल 1 हो गया तो आई एम ए ग्रेट टैलेंट आइडेंटिफायर. टुमारो इफ आई गो फॉर स्काउटिंग आफ्टर ऑलमोस्ट दिस इज माई 10th ईयर इन स्काउटिंग, आई फील लाइक कि अभी भी मैंने कुछ नया सीखा है. सो यू नीड टू बी ऑलवेज ए लर्नर. वो एक लर्निंग एबिलिटी चाहिए. सेकेंडली आई वुड लाइक टू से कि यू शुड बी अवेयर ऑफ योर ओन रीजन, योर ओन सराउंडिंग्स. कि फॉर एग्जाम्पल एक स्काउट झारखंड में है, ही शुड बी एबल टू नो कि उसके यहाँ पे टैलेंट कैसे टाइप का है, व्हाट टाइप ऑफ टैलेंट ही हैज़, एंड नोइंग दैट दे शुड ऑल्सो वर्क ऑन द कंपेरेटिव एनालिसिस.
ऐसे नहीं होता है कि जो प्लेयर अभी झारखंड से बेस्ट है या फिर मुंबई से बेस्ट है, ही मे नॉट बी ऑफ द सेम लेवल व्हेन ही कम्स अप विद द जोनल फाइनलिस्ट. फॉर एग्जांपल वेस्ट जोनल्स में जो मुंबई का टॉप प्लेयर है, ही मे नॉट टर्न आउट टू बी द सेम, बट एट द सेम टाइम उनको ये कंपेरेटिव एनालिसिस करते करते दे विल गेन मोर एंड मोर, यू कैन से एजुकेशन और मिलेगा उनको कि यस देयर इज ए टैलेंट ऑन द नेक्स्ट लेवल, देयर फॉर देयर कंपटीशन उनके प्लेयर्स के कारण. तो दे हैव टू कंटिन्यूसली वर्क ऑन 2-3 डिफरेंट पॉइंट्स एज आई मेंशन बिफोर. पहला तो you should be very much taking it seriously. Secondly, you should be knowing about your region कैसे चल रहा है, and you should always keep on the comparative analysis. So this is what I will tell them. So once we conduct the trials में हर जगह पे mostly we make sure कि वीडियोग्राफी होती है. So we do the वीडियो एनालिसिस एज वेल, वीडियोज़ होते हैं प्लेयर्स के, बट एट द सेम टाइम ऐसे रहता है कि वी ऑल्सो नीड टू प्रिपेयर डिटेल रिपोर्ट्स ऑफ प्लेयर्स. सो वॉट वी डिड टू सीजन्स बैक, वी केम अप विथ एन माइटास कार्ड. हम लोग ने एक माइटास कार्ड बनाया था जो डिटेल्ड प्लेयर रिपोर्ट्स होता है. सो वी हैव लाइक वी क्रिएट द रिपोर्ट्स ऑन ईच सिलेक्टेड प्लेयर्स. जो शॉर्टलिस्ट होता है उनके ऊपर हम लोग रिपोर्ट्स बनाते हैं विच कवर्स ऑल द 4 वर्टिकल्स ऑफ द गेम, दैट इज़ देयर फिजिकल एबिलिटी, देयर टेक्निकल स्किल्स, देयर टैक्टिकल एबिलिटी एंड ऑल्सो देयर साइकोसोशल ट्रेट्स. उसके अंदर भी देयर आर ऑलमोस्ट 38 to 40 एट्रीब्यूट्स जो हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं और उसके बेसिस के ऊपर रिपोर्ट्स बनते हैं. एंड वी ग्रेड देम प्लेयर्स ऑन द स्केल ऑफ यू से 1 to 5 अगर हम लोग उसको स्केल करते हैं, रेट करते हैं. सो यू कैन से द प्लेयर इज़ बिटवीन द रेंज ऑफ 3 to 5 जो हम लोग सिलेक्ट करते हैं, राइट. तो वैसे रिपोर्ट्स बनाते हैं और उस ग्रेड्स को जस्टिफाई करने के लिए वी ऑल्सो पुट अप रिमार्क्स कि क्यों उसको ये ग्रेडिंग दिया गया है. सो दिस माइटास कार्ड्स वी प्रिपेयर अलॉन्ग विथ इफ़ द वीडियोग्राफी इज़ अवेलेबल. उनका एक शॉर्ट हम लोग वीडियो एनालिसिस करते हैं वो प्लेयर का, एंड देन वी शेयर इट विद द क्लब्स. उनको क्लब्स को वो वीडियोस भी देते हैं, उनके शॉर्ट वीडियो, हाईलाइट वीडियोस. उसके साथ एज ए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इज़ और डिटेल रिपोर्ट्स, जिसके थ्रू विच हेल्प्स द क्लब कि येस दिस इज़ द स्पेसिफिक प्लेयर, उसके स्ट्रेंथ्स क्या है, उसके वीकनेस क्या है, एवरीथिंग इज़ मेंशन इन दैट रिपोर्ट, विच यू कैन से कि वो वीडियो के साथ कोरिलेट कर सकते हैं. एंड ऑन दैट बेसिस द प्लेयर्स आर कॉल्ड टू द क्लब्स. कि हम लोग ने क्यों सिलेक्ट किया वो भी क्लब्स को जानना ज़रूरी है. सो दिस इज़ हाउ वी डू इट. So as I mentioned before, when we started हमारे पास like we had very few scouts. अभी हमारे पास बहुत सारे scouts हैं, like we have more than 100 scouts अभी तो है हमारे पास. So वो एक हमारा विजन था, वो we have reached at one milestone तो हमारे पास है. But now our next is that we want more talented, more skilled scouts. अभी उनका बेस स्किल फाउंडेशन इज देयर, प्रॉपरली हो गया. नाउ दे नीड टू मूव इनटू द रोल स्पेसिफिक, दे शुड बी मोर स्किल्ड. ये है. सो द विजन इज टू थ्रू दिस एजुकेशन सिस्टम ऑफ और स्काउटिंग एजुकेशन सिस्टम वी वांट टू प्रोड्यूस टैलेंटेड स्किल्ड स्काउट्स, और उसका एंड रिजल्ट यही रहेगा कि दे कैन आइडेंटिफाई ग्रेट टैलेंट, काफ़ी अच्छा टैलेंट आइडेंटिफाई करेंगे, एंड दे कैन बी और फ्यूचर स्टार्स. वो कैन एट वन पॉइंट आफ्टर फ्यू ईयर्स दे कैन गिव समथिंग फॉर द इंडियन फुटबॉल, ताकि अच्छे अच्छे प्लेयर्स आगे निकले. सो मेन हमारा वही विजन रहेगा.